Good evening, everyone. So where we were yesterday, we were on the rational and irrational number. Right? We have seen natural number, whole number, integer. Then we have drawn this rational number on the number line. Then we have compared it, right? Comparison of rational number. Then we have converted the rational number into the decimal form, right? Then, okay. Now we will start with the practice set 1.4. So what is the question? So the number under root 2 is shown on a number line. Steps are given to show under root 3 on the number line using under root 2. Fill in the boxes properly and complete the activity. Okay. What we have to do over here, we have to draw these under root 2 on a number line. What? We have to draw these under root 2 on number line. How to do that? So let's see. Let's suppose this is our number line. Here we have 0, right? 1, 2, or let's assume this 1, 2, 1 and 2. We have to plot under root 2 on this number line. Where is under root 2? Where we can plot this under root 2? So let's suppose take this under root 2 on a right angle triangle, just like this. Okay, this is our 0. This is 1 unit. This is also height is 1 unit. So when we solve these equation using Pythagoras theorem, just example Pythagoras theorem, what we will get? That's it. Let's suppose we name it as A, B, and C. So AB square plus BC square is equal to AC का square. AB है 1 का square, BC है 1 का square. यहाँ पर आ गया AC का square. 1 square 1, 1 plus 1 2. दैट इज योर AC का स्क्वायर. ये स्क्वायर होगा कि क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 हो जाएगा. अंडर रूट 2. सो AC इज इक्वल टू अंडर रूट. तो इसका मतलब अब हमको क्या करना होगा? ये 1 यूनिट तो ये ले लिया, यहाँ से 0 से 1 यूनिट हो गया, यहाँ से 1 यूनिट ऊपर निकाल लिया, राइट. हाँ, आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन निकालनी है. नंबर लाइन निकालने के बाद आपको उस पर numbering करना है, 0 1 2 ऐसे. Okay, now what we have solved using this Pythagoras theorem, that is we have plotted this for 1 unit. Okay, so let's take this is from 1 unit and also 1 unit to the horizontal height. Now join these 1 unit and 0 point. Now take a rounder in your and put rounder on 0 and take a measurement up to this point, that is A point, what we call it the A point, and draw an arc circulating through this A point. Where that arc touches the number line is your under root 2 on the number line. Good. That is your under root 2. Now, what we have to do now? We have to plot under root 3 also. Okay, given over here now, we have to plot under root 3 also. How do we plot that? So, very simple. We'll do that. Okay, let's suppose this is our number line. No, we know that
To plot under root 2, we need a distance of 1 unit. Okay, so I just draw it using 1 unit distance, right? This is under root 2, right? Now, what I will do, I will just make 1 unit distance upward height from this under root 2. Okay, now let's suppose this is A, this is B, this is C, this is D, right? From D to C, we have to join this D to C. Okay, let's take a rounder and point it to the C to D and draw same arc as you have drawn for under root 2. Okay, now when these arcs intersect our number line, that point is our now under root 3. Simple. That is our under root 3. Done. Got it? Okay. Now show the number under root 5 on a number line. Okay. What we have to do? We have to show the number under root 5 on number line. How do we show that? Very simple. Let's suppose this is right angle triangle. We have to under root 5 over here. So for under root 5, what distance we have to take for these two sides if this is right angle triangle? Let's suppose we name it as a angle triangle ABC. Okay. If we take that height, that AB is for 1 unit and CB, that is our base, is for 2 units. Let's calculate using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. That is AB square plus BC square is equal to AC square, right? But AB, that is 1 square, BC 2 square, right? तो AC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो AC का स्क्वायर आ गया 1 plus 4, that is 5 AC square. But if we move out this under root 2 sign on the another side, so it will become under root 5. जो अंडर रूट 5 हमारा है यहाँ पर, मतलब जब हमें इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, चलो शुरू करते हैं फिर नंबर लाइन पे प्लॉट करना. Let's draw one number line. We have 0, 1, 2, 3. Okay. Let's suppose this is our 0 point, C is our 0 point, so we point it our C over here. Then from C to B, this is 2 units, so we named it as a B. बराबर. अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें और बी से ऊपर हाइट कितनी लेनी है, हमें 1 यूनिट लेनी है. कितनी यूनिट लेनी है, 1 यूनिट लेनी है, तो 1 यूनिट ले ली यहाँ पर हाइट. तो ये आ गया आपका ए पॉइंट. अब ए से सी क्या कर दो, ज्वाइन कर दो. सी सी ज्वाइन कर दी. नाउ लेट्स टेक राउंडर, और राउंडर को रखना है आपको सी पॉइंट पे. कहाँ पे रखना है, सी पॉइंट पे रखना है. और सी पर रखकर ए तक का डिस्टेंस लिया है, और वहां से आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, जो आर्क आपके नंबर लाइन को ऐसे क्रॉस करेगा. सिंपल. क्या करेगा, नंबर लाइन को क्रॉस करेगा. ओके, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा शायद से, सो लेट्स मूव इट टू अनदर साइड. ओके, जस्ट अ मिनट. इसको मूव करते हैं हम लोग. ओके, तो
जो लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ किया नीचे, आर्क जो ड्रॉ किया, दैट पॉइंट इज योर अंडर रूट 5। ये क्या हो गया हमारा? अंडर रूट 5। सिंपल. So that type we can show under root 5 on a number line. Next is our under root 7. How do we show that? Under root 7 on a number line. Okay, let's suppose draw this over here. Okay, under root 7 over here. Height is 1. We have to calculate this distance. How do we calculate this distance? By Pythagoras theorem again. See. So by Pythagoras theorem. इसको थोड़ा साइड में कर देते, नीचे लेते, सी आ गया by Pythagoras theorem. क्या है Pythagoras theorem? What is a Pythagoras theorem? That is AC का square is equal to AB का square plus BC का square. अब AC कितना है? अंडर रूट 7, उसका स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू AB कितना है? 1, उसका भी स्क्वायर कर दिया. यहाँ पे आ गया BC का स्क्वायर, बराबर. ये 1 इधर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. ये स्क्वायर अंडर रूट कट हो जाता है. 7 माइनस 1 इज इक्वल टू योर BC का स्क्वायर. तो BC क्या हो गया? 6. यहाँ पे ये BC स्क्वायर आ गया. लेकिन अब BC निकालने के लिए हमको क्या चाहिए रे? अंडर रूट 6. मतलब ये BC रहेगा हमारा अंडर रूट 6. अब अंडर रूट 6 हम कैसे निकालेंगे? तो अंडर रूट 6 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए रे? अंडर रूट 5 चाहिए, बराबर. मतलब सबसे पहले हमें अंडर रूट 5 निकालना पड़ेगा, उससे हम अंडर रूट 6 निकालेंगे, और फिर जाकर अंडर रूट 6 का यूज करके हम अंडर रूट 7 निकालेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे हम नंबर लाइन निकालते हैं सबसे पहले. ओके, यहाँ पे मेरा 0, 1, 2, 3, बराबर. अब अंडर रूट 5 निकालने के लिए जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 से लेकर 2 तक, और वहां से ऊपर 1 यूनिट डिस्टेंस. ओके, और इसको हम क्या करेंगे? 0 से ज्वाइन करवा देंगे. ज्वाइन करवा दिए तो ये आ गया A, B और C पॉइंट समझो. बाद में सी ए इतना डिस्टेंस लेना है राउंडर में, और वहां से एक आर्क ड्रॉ करना है. क्या करना है? आर्क. तो ये जो पॉइंट आ गया, ये हो गया आपका अंडर रूट 5. क्या हो गया? अंडर रूट 5. अब मुझे अंडर रूट 5 का यूज करके अंडर रूट 6 निकालना है. तो हाउ कैन आई डू दैट? तो अंडर रूट 6 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो अंडर रूट 5 लिया हुआ है, यहाँ से ऊपर हाइट निकालना है आपको 1 यूनिट डिस्टेंस. कितना यूनिट डिस्टेंस? 1 यूनिट डिस्टेंस. और सेम ये जो समझे, इसको नाम दे दिया हमने डी पॉइंट. तो ये डी से सी ज्वाइन कर दो. डन. डी से सी ज्वाइन हो गया. फिर से हमें राउंडर में सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस लेना है, और यहाँ पर ऐसे आर्क ड्रॉ करना है. तो ये जो पॉइंट यहाँ पर हमें मिल गया, जो कि लाइन पे टच किया हमारे नंबर लाइन पे, दैट इज अवर अंडर रूट 6. क्या है वो? अंडर रूट 6. अब अंडर रूट 6 का यूज करके हमें क्या निकालना है? अंडर रूट 7 निकालना है. तो फिर से वही मेथड, अंडर रूट 6 से ऊपर क्या करेंगे हम? 1 यूनिट डिस्टेंस पे हाइट निकाल लिया, समझो इसको नाम दे दिया ई पॉइंट. अब ई से लेकर सी हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन हो गया. अब सी से ई डिस्टेंस लेना है, और वहां से आपको एक आर्क ड्रॉ करना है. क्या ड्रॉ करना है? आर्क. अब ये आर्क जब नीचे नंबर एन पे टच होगा, दैट इज अवर अंडर रूट 7 पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. मतलब अंडर रूट 7 हमें ड्रॉ करने के लिए नंबर लाइन पे हमें सबसे पहले अंडर रूट 5 निकालना होगा, उसके बाद अंडर रूट 6 निकालना होगा, और बाद में जाके हमें अंडर रूट 7 निकालना होगा. So that is our under root 7 on the number line. Very simple. Okay.
So that type we have completed this chapter over here. Okay, let's see. Let's move on to the another chapter, that is mm, parallel lines and transversal. So what is parallel lines? That is our second chapter. So what is parallel lines? Parallel lines हम किसे कहेंगे? What do you think? Very simple. पैरेलल लाइंस मतलब ऐसे दो लाइंस कि जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. क्या? पैरेलल लाइंस आर द two lines which do not intersect each other, which do not intersect each other मतलब इसको कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं. उसे हम कहेंगे पैरेलल लाइंस. और ट्रांसवर्सल क्या होता है? तो समझो अभी ये दो पैरेलल लाइंस है, बराबर, और ये दोनों पैरेलल लाइंस को टच करने वाली एक लाइन होती है ऐसी, जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया. समझो ये पहले वाली ये लाइन एम है, ये लाइन एन है और ये लाइन एल है. ठीक है? तो इसमें ये जो लाइन एल दिया हुआ है दैट इज ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल मतलब क्या? वो दोनों पैरेलल लाइन को कट कर रही है. दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. ओके, वी विल सी डीपली. हम देखेंगे इसके आगे क्या होता है. दैट इज अवर ट्रांसवर्सल. जैसे दो पैरेलल लाइंस मैंने ड्रॉ कर लिया और उसके बीच में जो जाएगी ऐसी एक लाइन होगी, किसी भी हो सकती है. समझो ये एक दो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, इधर से जा रही है, बरोबर. दीज आर योर ट्रांसवर्सल. इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल. ओके. अब एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल. समझो अभी ये दो ट्रांसवर्सल है, समझो इनको नाम दे देते हैं हम लोग. हर एक पॉइंट को नाम करेंगे ए बी सी डी ई एफ, बराबर. यहाँ पे जी, यहाँ पे एच. तो यहाँ पे ए जी बी एक एंगल बन गया. ए जी एफ ये अनदर एंगल बन रहा है. सी एच डी ये एक एंगल बन गया. ई एच डी ये अनदर एंगल बन रहा है, राइट. सो दीज आर एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल. ये कौन से एंगल हो गए? जो ट्रांसवर्सल ने बनाए. जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल ए जी बी, दूसरा एंगल ए जी एफ, तीसरा एंगल सी एच डी, चौथा एंगल डी एच ई. दीज आर एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल. ओके. अब इसमें कुछ स्पेशल एंगल्स भी है जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो अगर आप इस साल पढ़ लोगे तो अगले साल टेंशन नहीं रहेगा. सो व्हाट आर दोस? तो सबसे पहले है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल. कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल. तो व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एंगल? देखो क्या दिया हुआ है डेफिनेशन में. If the arms on the transversal of a pair of angles are in the same direction and other arms are on the same side of the transversal, then it is called a pair of corresponding angle. Okay. तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? जो ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में होंगे और एक ही डायरेक्शन में होंगे. जस्ट एग्जांपल एंगल ए एम पी. ए एम पी इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? ये वाला एंगल. इसका करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल एम एन आर. देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, बराबर, और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में.
क्या है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है, उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। और दूसरे, जस्ट एग्जांपल ये साइड वाला एंगल ए एम क्यू, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो गया, एम एन एस, एंगल एम एन एस, बराबर, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर देखा जाए तो ये नीचे वाला एंगल टी एन आर, अभी नीचे देखो, एंगल टी एन आर, और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला सेम टू सेम एन एम पी, एन एम पी, बराबर। दूसरा वाला समझो, ये साइड वाले ले लिए, एंगल टी एन एस, और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये ऊपर वाला एंगल एन एम क्यू, एंगल एन एम क्यू। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कि जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है और एक ही डायरेक्शन में होते हैं। क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, दैट इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल। अब नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर नाम में ये इंटीरियर मतलब क्या, अंदर, दो लाइंस के बीच वाले, the pair of angle which are on the same side of a transversal and inside the given lines, जैसे ये दो लाइंस के बीच के, it's called as pair of interior angle। समझो, ये एक एंगल निकालो, ये एक लाइन निकाली, ये दूसरी लाइन है, और इस पर ये एक ट्रांसवर्सल है, राइट, और इसको नाम दे दिया, समझो ए बी सी डी ई और एफ, या फिर जी पे एच, बराबर। तो इसमें इंटीरियर एंगल कौन से हो गए, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के क्या हो गए रे, इंटीरियर एंगल। दो, जो ऐसे दो एंगल की दो लाइन के बीच में, राइट। उसके बाद ये बाजू वाला एंगल, ये और ये एक दूसरे के क्या हो गए, इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल, इंटीरियर एंगल। ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अल्टरनेट एंगल। विच आर अल्टरनेट एंगल, अब कौन होते हैं अल्टरनेट एंगल। अब जस्ट एग्जांपल में एक डायग्राम बनाता हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट भी दे देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, क्या बोला है देखो, अल्टरनेट एंगल्स, द पेयर ऑफ एंगल विच आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने क्या देखे थे, कि जो ट्रांसवर्सल की एक ही साइड है, लेकिन अल्टरनेट एंगल ये आपके ट्रांसवर्सल के दोनों अलग अलग अपोजिट साइड्स में है, एंड देयर आर्म्स ऑन द ट्रांसवर्सल दैट इज शोज अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अपोजिट साइड में तो है ही है, साथ में वो अपोजिट डायरेक्शन में भी है। क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में भी। अब कौन से वाले, तो देखो, सबसे पहले एंगल समझो मैंने ले लिया ए जी एफ, ये वाला एंगल ए जी एफ, इसका एग्जैक्टली अपोजिट, तो ये नीचे वाला एंगल आएगा सी एच टी, सी एच टी। देखो, ये इस डायरेक्शन में शो कर रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है, तो ये ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, बराबर। वैसे दूसरा, ये इधर वाला और इधर वाला, तो एंगल ए जी बी, इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा आएगा, डी एच ई। कौन सा, डी एच ई। वेरी सिंपल, समझ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, समझो अब ये दो लाइंस के बीच के देखते हैं आप लोग, ठीक है।
तो समझो ये वाला, जैसे एंगल बी जी एच, इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा है? ये नीचे वाला ई एच जी, ई एच जी, वैसे ही सेम टू सेम ये वाला एफ जी एच, एंगल एफ जी एच, इसका सेम टू सेम दूसरा वाला एंगल ये वाला सी एच जी, बराबर। मतलब दोनों जो है ये, वो ट्रांसवर्सल के अनदर साइड्स में और अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। सिंपल। These are called alternate angles. Okay, ठीक है। So alternate angles we have seen, corresponding angle, interior angle, angles made by transversal. Okay, ठीक है। Okay, we'll stop here for today. Okay, we'll continue it on tomorrow. ठीक, चलो, have a nice day, good night, जय हिंद।